when you follow his ideology, when you try to characterize his saying in my life, we can control all these things in a very smooth manner. The basic thing is that we should love. मतलब ठाकुर जी बोला है भक्ति ला देती है ज्ञान, ज्ञान से होता है आत्मबोध, आत्मबोध से आती है हिंसा अहिंसा, और अहिंसा ला देती है प्रेम। तो प्रेम कैसे लाएगा उसका थ्योरी भी ठाकुर जी बोला है। वॉट एवर ही सेड इट इज ऑल साइंस। ठाकुर जी ऑलवेज यूज्ड टू से दैट देयर इज नथिंग लाइक मिरेकल्स इन माय लाइफ, it is all science. When you do some good practices, our knowledge automatically comes into our mind, and we have in non-violence life, and then we can start loving someone. That means this knowledge can be gathered. Knowledge can be gathered by bhakti only. When you really love someone, our knowledge automatically comes. वृत्ति प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग लव सेंटर चाहिए, अदरवाइज वी कैनॉट कंट्रोल ऑल दिस बैड हैबिट्स इन आवर लाइफ। सतनुग्गा, एज यू नो, एवरी डे मॉर्निंग वी से मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, काम लोभ जीत बशी। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स every day we are promising something to our beloved Lord, that let my ahankar goes down, let my krodh goes down, let my laziness goes down, let my energy comes into our day-to-day life. And this promise strengthens us to lead our very powerful divine life, and which ultimately gives us, fetches us success in our life. Now, I would like to share one story. One day, one mother brought her son of 12-year age to Sri Thakur, complaining about that her son, does not study at all, and he likes watching movie again and again. And despite her request to him, advices to him, he doesn't listen to her. Then she was failed and literally crying to Sisi Thakur ji, Sisi Thakur, please help me. My son is getting ruined. Thakurji said, don't worry, let him watch movie as much as he wants. Son was very happy. How is it possible when my mother was saying not to watch movie, and my the Guruji to whom I have been brought, he is saying watch movie as many as I can. What is this? He was very happy to hear from Sisi Thakur that okay, movie can be seen. But Thakurji said, one thing is there, every day you watch movie, you come to me and tell me the story of the movie you are watching. The boy was very happy. He said, no problem, I will come and tell him all that about. Then every day he used to tell the story to Sri Thakur, the story of the film that he used to see. But later on he realized that I cannot see bad movies, which is not good for our day-to-day life. I will stop seeing all that. I cannot say Thakurji about all those stories which is not supposed to be spoken to. Then he started learning how to see good movies. Then he kept on watching movie, whatever was good to him, and he used to share all the experiences of the movie to him. Then after some day, Thakurji told, then you have told me a lot of stories nowadays. You start writing something about the stories. He said, no problem. Then also he started writing. While writing also, while saying something, he could say many things. But while writing, he wanted to write something which is very good in writing. Then he started learning also. He used to watch movies and used to write something which was appreciated by Sisi Thakur many a times. After some time, Thakurji told, now you have a good writer, you start writing on your own about a film, on your own about anything you like. Then he wrote 2-3 stories on his own and placed to Sisi Thakurji. Thakurji was very happy. And fortunately, the day he brought some writings to him, a complete story of his writing, own writing, that day one gentleman, he was apparently a film director, he was also Guru Bhai, he came to Sisi Thakur. Thakurji, without showing that 12-year son, he showed that script to the gentleman, and he said that you please read it and you just see whether you can consider this thing to be a good picture. While going through that, that man was surprised. It was amazing. He said, who has written it? Such a wonderful experience writing. I cannot think.
He was so happy. Then he said, I want to see that boy. Then Thakurji called him and showed him, this is the boy of 12 years of age who wrote this story. This is how the transformations, whatever bad things we have all bad things, good things in our life, but how it can be transformed, that is the main thing. Thakurji has got such a wonderful power of love. With that love, he can transform any bad things to a good things within no time. Then another story I would like to say, he is Mr. Utpal Sharma. Utpal Sharma is a Alpha commandant. As you know, Alpha is the United Liberation Front of Assam. He belongs to Assam. Are you able to hear everybody? May I know, please? It is all. It is audible. Yes. Yes, yes, audible. Yes, sorry. Thank you very much. Mr. Utpal Sharma, he was an Alpha commander. He was a big terrorist, deadly terrorist in Assam. One day, one of my friends, his name was Rakesh Pal. He was an LLB. He went to some village and he found him traveling with a lot of guns and some few people with him. Then he stopped him. That Utpal Sharma stopped that Ritik, Mr. Rakesh Pal, in his on his way and told him, "What are you doing?" He said, "I am sharing the messages of Sri Sri Thakur Anukul Chandok." He said, "What is this? You tell me what something about this." Then he spoke to him and he was convinced. Then Utpal Sharma said, "Can I take initiation right now?" He said, "You can." Then in his own room, he was very he was afraid of sharing those things also, but in his presence with lot of gunmen people, he shared the holy name to the Utpal Sharma. But Utpal Sharma took Diksha, and within few days, he realized that whatever I am doing, it is not a good thing. He thought of leaving all these bad things in his mind. He started leaving the gun, killing people. He killed at least many people. Then started realizing whatever I am doing is not bad, is not good. Then his mother also, he started sharing something with his mother, and he has sister also. Then he started changing his character day to day. One day he said, I would like to leave all these things. Then the moment he wanted to leave that, some anti-party wanted to kill him immediately. He immediately got red-handed by some people, miscreant people, and he was about to shoot down. Then fortunately Thakurji saved him. Next day he said, I will not stay here. I will go to Devghar, Acharya Dev, and ask him his blessing. What should I do now? Because I am sandwiched now. He took a couple of guns in his bag and went to Devghar and spoke to Sri Dada and shared everything with him. That Dada, मेरा इतना गलती हो गया, मैं जीवन में बहुत हत्या किया है, बहुत आदमी को मार चुका है, मैं अभी दीक्षा लिया लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना, मैं इधर जा पा रहा हूँ, इधर जाने से हमको मार देगा और आपको पास आने ये सत्संग करने से हमको जीवन आनंद लग रहा है, मैं क्या करूँ। दादा उस समय एक आशीर्वाद दिया, उत्पल जी इधर आइए। दादा का सामने उनको बुलाया, बुला के बोला है, अगर उन्होंने मैं सब कुछ तेरा जितना पाप किया सब कुछ मैं ले सकता हूँ, लेकिन अगर कोई स्त्री का हाथ में, विवाहित स्त्री का शरीर में अगर तुमने हाथ नहीं दिया, वो छोड़ के मैं तेरा जितना पाप है मैं सब ले सकता हूँ। उन्होंने प्रणाम करके बोला, दादा मैं सब कुछ किया, आदमी को मारा, सब कुछ किया, लेकिन ये सब खराब काम मैं किया नहीं, आपने जो बोला है। दादा बोले, मैं आशीर्वाद करता हूँ, जब तुमको कुछ नहीं कर पाएगा तुम अपना गांव में जाओ, अपना गांव में जाकर ठाकुर जी का काम करो, तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। Then immediately he took the blessing and went back to his house. It was that location is Pehu in Assam. वहां पे जाके उन्होंने ठाकुर जी का काम शुरू किया, सत्संग करना शुरू किया। धीरे धीरे जो एंटी पार्टी था धीरे धीरे डैम्पन हो गया। उनका माइंड में ऐसा कुछ आया है जो नहीं, नाउ ही इज आल्सो डूइंग समथिंग गुड फॉर अस। तो ग्रेजुअली जो एंटी पार्टी वो भी डिमिनिश्ड हो गया है। फिर धीरे धीरे उन्होंने उनका बहन का शादी दिया, मेरे को फोन भी किया था, उनका बहन का शादी दिया, माँ का साथ भी बात हुआ। बाद में उन्होंने देवघर में आया, आचार्य देव का आशीर्वाद में उनको ठाकुर जी का पंजा हुआ है। अभी एक बहुत बड़ा आदमी उन्होंने बना है, ठाकुर जी का अच्छा कर्मी बना है। आसाम में बहुत दीक्षा देते हैं और हर सत्संग में उनका बात सुनने के लिए आदमी लोग ये करते हैं। दिस इज हाउ ए लाइफ डेडली टेररिस्ट हैज बीन कन्वर्टेड टू ए पर्सन व्हिच इज अनइमेजिनेबल। ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के जो पावर है, ये पावर में बोल के खत्म नहीं कर पाएगा। नाउ कमिंग टू दैट माय पर्सनल लाइफ, मेरा जीवन में भी इस तरह काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बिकॉज व्हाट आई कुड हैव बीन आई डोंट नो, बट आई बिलीव आई एम एन एग्जांपल ऑफ हिज ब्लेसिंग थ्रू आउट माय लाइफ। बाय वर्च्यू ऑफ माय पेरेंशियल ग्रेस, आई एम सत्संगी बाय बर्थ,
and my next generation is also going to follow the same as of now. CC Barda one day blessed me. One day मैं ठाकुर जी का पास सीसी बर्दा का पास जाके एक रीति के सामने जाके पूछा था, दादा हम सीसी बर्दा को प्रणाम करके बोला था जो हम ठाकुर जी का काम करना चाहते हैं। सीसी बर्दा आशीर्वाद करके बोला है तुम कर सकेगा। मैंने बंगाली में बोला है তুই পারবি তোর শরীরে লোমকূপে ঠাকুরের इच्छा আছে তুই পারবি। इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे को एक दिन दिया था सीसी बर्दा। सीसी आचार्य देव को एक दिन मैं पूछा था, दादा हम उस समय पढ़ाई करते थे, इंजीनियरिंग पढ़ते थे, तो पूछा था दादा हम ठाकुर जी का बात कैसा करना चाहिए। तो उन्होंने हमको बोला था ये जीवन में पहले आप कैसा था दीक्षा लेने का पहले यार अभी आप कैसा है, और ठाकुर जी का जो डे टू डे लाइफ में आपको जो सब लोग को होता है, एक्चुअली वी अंडरस्टैंड और डजंट अंडरस्टैंड, इट इज अप टू अस, बट देयर इज ए चेंज इन एवरीबॉडीज माइंड व्हेन यू रियली कॉल हिम। रियली कॉलिंग मीन्स कॉलिंग, दैट कॉल विल फ्रॉम आवर हार्ट। जब मैं मेरा अंतर से उनको बुलाता हूँ तो दादा हमको आशीर्वाद किया था जो आपको पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ का डिफरेंस और ठाकुर जी की दया का बात ही सबको बोलना है। इसलिए मैं सोचा मेरा जीवन में जो दो घटना घटा है वो ठाकुर जी का घटना आपको बस शेयर करके मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। एक्चुअली जब मैं 1988 में बीटेक पास किया है, मैं गेट भी क्वालिफाई किया था, एमटेक पढ़ने की इच्छा था, बाद में एमटेक भी किया था, बट जब पास किया था छोटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे तो मेरा मन उतना अच्छा नहीं था। मैंने अच्छा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम करने का मेरा बहुत शौक था। तो मैं गुवाहाटी मंदिर में रहते थे और वहां पे देयर इज ए वाटरिंग प्रॉब्लम, ठाकुर जी का घर में पानी आ जाते थे, बीइंग लो लैंड एरिया वहां पे काफी पानी आ जाते थे। तो आई यूज्ड टू डू डिवाटरिंग राउंड द क्लॉक इन द नाइट। दिन में मैं कुछ करता था, कुछ पढ़ाई करता था, जो भी करता था, पर रात में इट वाज माय ड्यूटी to do dewatering throughout the night. And it was my job, and I used to enjoy it with all my team members of Guru Wise. I was really, it was that I cannot remember, forget those moments of my life. Then वैसा करते करते मेरा नौकरी तो बहुत छोटा था, 1200 रुपया मिलता था उस समय, बट रेलवे रिक्रूटमेंट परीक्षा दिया है मंदिर में रहते रहते, and it is a surprise to me, I topped the competitive exam of Railway Recruitment Board 1988 in Assam. And it was a thrilling moment for me. How it was possible, I don't know. I did not study much, but whatever I wrote, whatever I did, I topped in Assam, Railway Recruitment for Assam, and then got the railway job in Assam itself in Guwahati. I joined Guwahati. Then from Guwahati in the year 1997, I would like to share all the happenings in Pune. I had been transferred to 1997 in Irisen, Pune. I started my career in Irisen, Pune in 1997. First, just immediately after joining there, I wrote a personal letter to Sri Dada. Though I will not share all the contents of that letter, but Dada personally wrote back to me saying that, hello, everybody is audible? Yes, Dada. Yes. दादा मेरे को लिख के आचार्य देव ने मेरे को लेटर में लिखा है कि अभी पुणे में आप गया है, मैं आपको बोलता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपको आसपास का गुरु भाई मिलेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं उस समय माइतीदा को भी नहीं जानता था, किसी को भी नहीं जानता था। तो दादा ने आशीर्वाद, जिस दिन लेटर मेरे घर में आया है, मेरा घर एकदम लगता है एकदम आलोकित हो गया इतना। इट वॉज जस्ट whole room was lightened like anything. I thought Sri Dada has come to my house now. Then after that, probably Mr. Baidyanath Chanda called me up. He introduced many people. Then Maitida also, I came to know Mr. Maitida. Then Maitida helped me a lot. Then Samarda, then Godbolema. Then many more people came to know just after the blessing of Sri Dada. This is how everybody's life is being controlled by this supreme power. Dada always said that there is nothing like power, but I believe when you really love him, the blessing follows us. Then this way my life started. Then in Pune, as you know, Reverend Bavaida Ashirwad that we should have a center. Then with the help of Maitida and all these 5 people, Chandrasekhar Bachuri and all, we arranged one satsang center over there. Then Sipaida blessed us being there. Then in between 1999, I got married. Then I want to share the story of my incident in Pune itself. I was traveling with my wife to Vilai in Pune railway station.
escalator just started. Escalator was not there at that point of time. Escalator started, and I was also quite young. I saw that this escalator moving around. I immediately jumped on that. My wife also jumped on that, and at that time, my wife was pregnant. She was carrying a baby of probably 7 8 months, and at that point, she suddenly toppled down and fell from top to bottom of the escalator, and she started crying, and we thought my baby is lost. आई कुड नॉट से एनीथिंग। हम मैं ठाकुर जी को प्रार्थना शुरू किया, ठाकुर जी अभी क्या करेगा मेरा, क्योंकि वो जो बंगाली में साध होता है ना, साध में जा रहा था हम लोग। हम सोचा है बच्चा तो गया और आदमी बहुत भर गया है, क्या करेगा। फिर भी सोचा है जो ठाकुर जी की इच्छा होगा। अभी तो टिकट भी हो गया, तो ट्रेन में जाके बैठने का कोशिश किया। ट्रेन में जाके बैठने के बाद में भी बच्चा जो बेबी का मूवमेंट होता है सब कुछ बंद हो गया था। इट वॉज ऑलवेज देयर वाज अ मोमेंट व्हेन सम प्रेग्नेंट बेबी गोइंग टू मैच्योर, बट वो सब कुछ बंद हो गया था फॉर अबाउट हाफ एन आवर। वी थॉट इट इज नॉट गुड टू गो बैक टू भिलाई एंड सेलिब्रेट दोस थिंग। हम लोग बहुत रो रहा था, माय वाइफ वाज आल्सो क्राइंग। बट सडनली मेरा याद आया, मेरा सिस्टर का फादर इन लॉ एक बार बोला था, जब बहुत क्रिटिकल होगा जीवन में, क्रिटिकल तो होता है बट क्रिटिकल से क्रिटिकल जब होगा तो ठाकुर जी का एक प्रणामी रख के प्रार्थना करना है, हे दयाल मेरे को बचा लो इस समय से। तो हम भी उस समय याद आया, कुछ उपाय नहीं था, क्या करेगा। हम लोग हाथ में ठाकुर जी को प्रणामी लेके, ठाकुर जी को प्रणाम करके रख के, दोनों हस्बैंड वाइफ, सेकंड एसी था, अभी भी याद है, साइड बात में था, हम लोग दोनों ठाकुर जी का नाम कर रहा था। नाम करते 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 5 मिनट भी गया नहीं, सडनली वो बेबी मोमेंट शुरू हुआ है मेरा वाइफ का, एंड इट वाज ए थ्रिलिंग मोमेंट फॉर अस। वी थॉट इट इज ए, मैंने क्या बोले, न्यू लाइफ टू माय सन मिस्टर अमित आदित्य। ही इज हियर इन माय हाउस, ही इज डूइंग मेडिकल स्टडीज नाउअडेज। तो आज उनको हम मिलता नहीं था, उस दिन अगर हम उनका डेथ हो जाता था। तो इस तरह जीवन में मैं जो बोलता हूँ, जो ठाकुर जी को पकड़ने से हमको, हम ठाकुर जी को क्या करते हैं मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को ठाकुर जी देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। हम लोग क्या देते हैं, हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं सुबह शाम को प्रार्थना कर 2 बात सुनना, लेकिन इतना का जो रिटर्न मेनी फोल्ड में मिलता है, ये मेरा एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल बोल के और ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं टाइम भी हो रहा है। तो इस तरह मेरा पुणे में ऐसा घटना घटा है, घटने के बाद में मेरा रियलाइजेशन यही है कि हम लोग को अभी डरना नहीं है। जीवन में जिसको मिला है ये परम भाग्य है, इसको मान के चलना है। अभी बोलने का बात गया, अभी हमको मान के चलना है, जीवन में कैरेक्टराइज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी जीवन में लाके जीवन को सक्सेस करना। सेकेंड वन ऑफ द स्टोरी में जामनगर में आया है 1914 में। आने के बाद में यहाँ पे जस्ट एक गुरु भाई था, धीरे 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 काफी गुरु भाई मिला है, करीब काफी आदमी का दीक्षा हुआ, ये हुआ वो हुआ है। बट एक इंसिडेंट बीच में बोलना चाहता हूँ। बीच में पूजन ने बाबा का आशीर्वाद किया, यहाँ पे जमीन लेने के लिए हम जमीन लेने का तैयारी किया, सब कुछ करने गया है, बट बीच में एक महा भयानक इंसिडेंट हुआ मेरे लाइफ में। इट वाज 17 अप्रैल 2017, आई रिमेम्बर दैट डे। मैं ऑफिस से जस्ट आया है, आके आई वाज जस्ट वॉशिंग माय फेस इन द बेसिन, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ स्लीपरी materials in the floor. I got slipped, and the basin is just in front of my Thakurji's house, still where the house where I have been living nowadays. तो उसमें जब स्लिप करके गिर गया है, मेरा सिर में इतना जोर से लगा है, आई वॉज अबाउट टू डाई। आई लॉस्ट ऑल माई दिस थिंग फीलिंग, एंड माई होल बॉडी वॉज ट्रेमलिंग। मेरा आंख निकल के आया है। I thought I saw my wife was running to me, rushing to me, daughter was rushing to me, brother was here, and everybody was crying, but I was not able to speak because मेरा बॉडी रो, मैंने ट्रेमल हो रहा था, और मेरा आंख, उन लोग बोला था उस समय में, मेरा आंख से आंख निकल के आ गया था, एंड मैं कभी देख पा रहा था लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं सोचा मैं अभी मेरा जीवन यहीं पे अंत हो रहा है। लेकिन उसका पहले जो बाबा ने आशीर्वाद दिया था जमीन करने के लिए, वो मेरा तब रियलाइज किया जो जमीन का आशीर्वाद के पीछे किया है। तो मैं उस समय में खाली यही था, एक परम भाग्य था जहां पे मैं गिर गया था। मैं, मेरा आग जहां पे गया वो मेरा ठाकुर जी का घर में मेरा आग गया है, एंड आई कुड सी ठाकुर इन फ्रंट ऑफ मी। मैं देख के एवरीबॉडी वाज क्राइंग एंड आई वाज नॉट एबल टू स्पीक। आई थॉट आई विल डाई राइट नाउ। ऐसा जब फीलिंग आया, मैं सोचा ठाकुर जी का, उस समय इतना मेरा सेंस है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ठाकुर जी
मेरे को बहुत काम बाबा ने दिया है, आचार्य देव ने दिया है, जमीन लेना है, मैं ये सब नहीं करके मैं कैसे चला जाऊं। इतना सिचुएशन आया, एकदम सीरियस सिचुएशन। मैं तो सोचा मैं जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ, मेरे को कोई, मैंने मैंने बॉडी कांप रहा है। इट वाज गोइंग ऑन फॉर अबाउट 5-6 मिनट्स लाइक दैट। सब लोग रो रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। सडनली मेरा डॉटर, मैं जब ठाकुर जी कैसे सोचा है, ठाकुर जी मेरे को इतना जल्दी जाना ही पड़ेगा, मेरा डॉटर वो भी अभी मेरा साथ में है, उसका नाम है ओली। उन्होंने आके सीधा ठाकुर जी का पास चला गया। ठाकुर जी का पास चला जाके ठाकुर जी का चक्र फोटो में मॉर्निंग में ध्यान करने के टाइम में बाहर में रखते थे, तो चक्र फोटो लेके मेरा फोरहेड में, मेरा फोरहेड जो है, मेरा फोरहेड में लाके यहाँ पे सटा दिया है। सटा के ठाकुर जी का जो पवित्र नाम है उन लोग उन्होंने कर रहा था। उसका बाद में मेरा जब टच हुआ ठाकुर जी चक्र फोटो मेरा फोरहेड में, मेरा जीवन में जैसा एक नया नया सर्वाइवल का मैंने फीलिंग आया है। नहीं मैं इतना जल्दी जाऊंगा नहीं, मैं इतना जल्दी जाऊंगा नहीं। उस समय में मैं रियलाइज करने लगा कि नहीं, मेरा फिर नॉर्मली ग्रेजुअली मेरा नॉर्मल सेंस आने लगा। फिर मैं इमीडिएटली अपना घर में गया, फिर इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर मैंने टोल्ड मी आई वाज वेरी सीरियस। तो मेरे को साथ साथ सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन देख के मेरे को बोला है कि आप जो सरवाइव कर रहा है इट इज ए क्वेश्चन ऑफ मिरेकल्स, ऐसा सरवाइव नहीं कर सकता है। तो मैं तब रियलाइज किया है कि इसका पीछे कौन है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम लोग के जीवन का हर जीवन में एवरीबडी हैज गॉट हिज ओन फीलिंग अबाउट सीसी ठाकुर। द वे आई सी हिम, द रिस्पॉन्स आई गेटिंग। हमको जैसा हम सोचते हैं ऐसा मेरा रिस्पॉन्स, मेरा सोचने के ऊपर में है। If I see Thakurji is in the wall of in photo, Thakurji will be like that only. If I see, Thakurji is with me and he is feeding me everything, I have no problem in my life. Nowadays, like पेंडेमिक कोविड-19 जो अभी आया है, ये अगर नहीं आता था तो हम लोग को सदाचार क्या था मालूम नहीं पड़ता था। व्हाट इज सदाचार, इट कुड नॉट हैव बीन नोन टू अस। नाउ अभी कोविड-19 हमको सिखा रहा है सदाचार, जो कि ठाकुर जी आज से 120 साल पहले, 130 साल पहले बोल के गया, ये ऐसा सदाचार करना था। मैं सुना था ठाकुर जी के लेटर आने से ठाकुर जी बोलता था हाथ धो के लेटर, मैंने पढ़ने के बाद में हाथ धोने के लिए बोलता था। तो ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग को इनबिल्ट है, हम लोग को डरने का नहीं है। लास्टली मैं फिर 2-4 चीज बोल के खत्म करना चाहता हूँ। अभी कोविड-19 के लिए रियली हम लोग सब बहुत सीरियस है। हम लोग बचेगा कि नहीं बचेगा नोबडी नोस, बट एक बात गारंटी है, ठाकुर जी जो गारंटी दे के गया, जो ठाकुर जी जो दे के गया, अगले 10,000 ईयर्स तक और किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी जो बोल के गया, ठाकुर जी का बात आज तक जो भी उन्होंने बोला है कभी भी उसका कुछ भी डेविएशन नहीं हुआ, नॉट इवन ए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दैट, जो बोल के गया। इसलिए 10,000 साल तो अभी हुआ ही नहीं, अभी 134 ईयर हुआ है। तो 134 ईयर में हम लोग को डर क्या है, हम लोग को डरने का कोई चिंता नहीं है। आराम से ठाकुर जी को लेके आनंद लेके चले, बहुत आनंद लेके चले। एक कोरोना हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया है, आज पूना सारे विश्व का आदमी को हम देख पा रहे हैं। इट इज ए प्रिविलेज फॉर अस, we are able to interact, we are able to share proudly all the incidents, everybody's incidents, day-to-day life happenings of Sri Thakur. It is really his blessings. This is what we want. Let us come together. Let us strongly feel the existence of Sri Thakur in our day-to-day life. That's all from now. Jai Guru. जय गुरु, जय गुरु अमूलदा, Jai Guru. धन्यवाद। हेलो दादा, আমার সৎসঙ্গ আছে। हाँ आई नो, सो आपको उधर अटेंड करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। प्लीज प्रे टू सीसी ठाकुर दैट हम ऐसा आगे और चलते रहे, मेरा परिवार, मेरा गुरु भाई, मेरे सबको लेके ऐसे आनंद में रहे। हम लोग सब आनंद में है, आप लोग भी आनंद में रहिए, सब लोग सुखी रहे, यही मेरा प्रार्थना है परम दयाल के पास। जय गुरु। जय गुरु। कौस्तभ लाइन पे हो? कौस्तभ। जय गुरु अंकल। हाँ जी, सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, गाना शुरू कर। जी। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जहाँ है
ये संसार जाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। राह कठिन है तेरी मेरी, राह कठिन है तेरी मेरी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसार जाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। मन चंचल के साथ न पड़ना, रीति जगत का संग न धरना, मोह जाल में उलझ पुलझ कर, मोह जाल में उलझ पुलझ कर अंत समय पछताना है, ये संसार जाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार ना पावे अंधी गहरी, भव जल धारा ऊंची लहरी, पार ना पाए अंधी गहरी। काल भवर में होश गवाया, काल भवर में होश गवाया, डूब के प्राण गवाना है, ये संसार जाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का, सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का, उद्धाता है जीव जगत के, उद्धाता है जीव जगत के, अभय चरण ठिकाना है, ये संसार जाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। राह कठिन है तेरी मेरी, राह कठिन है तेरी मेरी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसार जाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। जय गुरु। जय गुरु। अच्छा गाना गाया। तो अभी हम अगले प्रोग्राम में चलेंगे। अभी स्वात्वती रीडिंग आभूषण पनिग्रही। गोपाल दा आप लाइन पे है ना? गोपाल भाई ऑन म्यूट, गोपाल भाई ऑन म्यूट कीजिए। हाँ जी। जय गुरु, मैं आभूषण हूँ। जय गुरु, मैं आभूषण पाणिग्राही हूँ। आज मैं सतवानी का पाठ पढ़ रहा हूँ, जिसका विषय है रसगुल्ला।
सुनाई दे रही है क्या? ये सुनाई दे रहा है। ठीक है ठीक है। सन 1957 की घटना है। डॉक्टर बच्चा प्रसाद छपरा के सहप्रतिक ऋतिक है। कोलकाता के स्टॉक कल- कोलकाता के स्टॉकेश चर्च कॉलेज में आईएससी में पढ़ने के दौरान वह कोलकाता से अपना घर छपरा जा रहे थे। उन दिनों कलकत्ता का केसी दास का रसगुल्ला बहुत ही प्रसिद्ध था। वह 2 डब्बा रसगुल्ला खरीदकर घर ले जा रहे थे। उनकी ट्रेन जैसे ही जसडी स्टेशन पहुंची तो एकाएक उनके मन में विचार आया कि श्री ठाकुर के दर्शन और प्रणाम करके दूसरी ट्रेन पकड़कर छपरा जाऊंगा। जब सत्संग आश्रम पहुंचे तो संध्या का विनती प्रार्थना समाप्त हुई थी। बच्चा दा श्री ठाकुर को प्रणाम करके उनके निकट बैठ गए। वह श्री ठाकुर को लगातार एक नजर से देख जा रहे थे। अचानक श्री ठाकुर उनसे पूछे, रसगुल्ला कैसे है रे? बच्चा दा शर्मिंदा होकर बोले, ठाकुर रसगुल्ला अटैची में रखा है, मैं अभी तुरंत लेकर आता हूँ। बच्चा दा मिठाई के 2 डब्बे में से एक डब्बे अपने परिवार के लिए रखे और दूसरा डब्बा श्री ठाकुर के लिए लेकर आए। श्री ठाकुर मिठाई का डब्बा देखकर बहुत खुश हुए। लग रहा था कि उनको बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। थोड़ी देर बाद वह बच्चा दा से बोले, और एक डब्बा रसगुल्ला जो तुम्हारे पास है उसे अपने परिवार के लिए लेते जाना। अंतर्यामी श्री ठाकुर के यह बात सुनकर बच्चा दा और भी शर्मिंदा हो गए। वह मन ही मन सोचने लगे कि श्री ठाकुर के समक्ष कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती है। जय गुरु। आभूषण बहुत अच्छा, आभूषण बहुत अच्छा। थैंक यू दादा। जय गुरु। अभी ज्ञानेंद्र चौहान। हाँ जी दादा, जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। परम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम में बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बड़दा की दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय गुरु। आज एक स्टोरी सुन, ठाकुर जी की एक स्टोरी है, इच्छा पूर्ति, तो मैं वो सुनाने जा रहा हूं। तो इच्छा पूर्ति। डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास सत्संग प्रेस द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी पत्रिका लीगेट के मुख्य संपादक थे। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से श्री ठाकुर के भावधारा जीवन का अस्तित्व धर्म पर ही आधारित है। धर्म इज अ फोल्डर ऑफ एग्जिस्टेंस एज कंसीव्ड बाय द श्री ठाकुर विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हैं। वे सत्संग नगर के पुरंदहा मोहल्ला में रहते थे। एक दिन जब श्री ठाकुर को प्रणाम करने के लिए सत्संग आश्रम के लिए निकले तो उसी समय 12 वर्ष उम्र की उनकी लड़की ने कहा कि पापा, आज मुझे रसगुल्ला खाने की बहुत इच्छा हो रही है। वे बोले, ठीक है, मैं आश्रम से लौटते वक्त तुम्हारे लिए रसगुल्ला लेते आएंगे। बच्ची की इच्छा पूर्ति के लिए रेवती दा अपने कुर्ते की जेब में 20 रुपए रख लिए। आश्रम पहुंचकर जब रेवती दा श्री ठाकुर को प्रणाम करके खड़े हुए तो श्री ठाकुर ने कहा, श्री ठाकुर ने एक भक्त की ओर संकेत करते हुए उनसे कहा, रेवती, क्या तुम उस सज्जन को 20 रुपए दे सकते हो? रेवतीदा ने प्रसन्नता पूर्वक तुरंत अपनी जेब से 20 रुपए निकाल कर दे दिए।
घर वापस लौटने के समय सोच रहे थे कि जैसे ही पहुंचूंगा बेटी दौड़ती हुई रसगुल्ला के लिए मेरे पास आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस उधेड़ बुन में वे घर पहुंचकर जब फाटक खोले तो उनकी बेटी दौड़ते हुए आई और कही, पापा हम लोगों के घर एक गुरु भाई कलकत्ता से आए हैं जो अपने साथ एक हंडिया रसगुल्ला, मीठा दही, 2 किलो देसी घी और चिवड़ा लेकर आए हैं। यह सुनते ही रेवतीदा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। सोचने लगे, परमपिता श्री श्री ठाकुर कितने दयालु हैं, जिन्होंने घर पहुंचने के पहले ही मेरे बच्ची की इच्छा पूर्ति ही नहीं की बल्कि उससे 100 गुना ज्यादा दिया। तो ये था श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का स्टोरी। कहने का मतलब यही है कि बड़े लोग श्री श्री ठाकुर और परमपिता लोगों को पता होता है कि हमको क्या चाहिए, भक्त क्या मांगना चाहता है, क्या अंदर की बात है, सब श्री श्री ठाकुर अंकल चंद्र को पता होता है। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ, अभी संजय। जय गुरु। जय गुरु। मैं संजय घोष। जय गुरु। जय गुरु। मैं संजय घोष आज सातवती से ठाकुर जी का बाल्यकाल का एक घटना पढ़ने वाला हूँ। शीर्षक, आराध्य देवता का आविर्भाव। एक बार बालक अनुकूल चंद्र अपनी माँ मनमोहिनी देवी के साथ चचेरे नाना श्री उमेश लाहिड़ी के गांव हरिपुर गए। उस समय उनकी उम्र 11 थी। हरिपुर पाटना जिले का ही एक गांव है जो हिमायतपुर से थोड़ी दूर पर अवस्थित है। उमेश लाहिड़ी बाल गोपाल की नित्य पूजा करते थे। एक दिन वे आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई पड़ते ही ध्यान भंग हो गया। वे बाल गोपाल का सिंहासन देखते ही सिहर उठे। सिंहासन पर मनमोहिनी देवी का बालक अनुकूल चंद्र बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और पीतल का बाल गोपाल सिंहासन के नीचे गिरा हुआ था। उमेश लाहिड़ी थोड़ा विरक्त हुए। सोचे कि पूजा के घर में यह कैसा खेल है। निकम्मा दरबान कहाँ चला गया है। वे दरबान को बुलाकर डांटते हुए पूछे कि गधा, तुम कहाँ था? क्या दरवाजा खोलकर सोया रहता है? यह बालक पूजा घर में कैसे प्रवेश कर गया? तुमने इसे रोका क्यों नहीं? दरबान ने कहा कि मालिक, मैं सोया नहीं था। आपका हुक्म मुझे मालूम है। आपके ध्यान पर बैठते ही न जाने वह बालक कहाँ से आया और मेरे सामने से होकर सीधा आपके पूजा घर में चला गया। पता नहीं क्यों न मुझे बाधा देने का साहस हुआ और न मेरी इच्छा ही हुई। इस गलती के कारण आप मुझे जो भी सजा दें। जमींदार उमेश लाहिड़ी स्तंभित हो दरबान की और विस्फारित नेत्रों से देखने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि किस शक्ति के बल कर आज इतना चौकस और जिम्मेदार दरबान भी पराजित हो गया है। इस घटना उमेश लाहिड़ी के मानस पटेल में उथल पुथल मचा दिया। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सजुदा। जय गुरु। बहुत अच्छा। गोपाल भाई। हाँ, ऐसे सुनाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात, मेरे मालिक जगत के नाम। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम। संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आवे बंधु भाई। संगी न साथी मीत न कोई,
अग्ने आवे बंधु भाई, से तो अब भी शरण में आओ, से तो अब भी, से तो अब भी शरण में आओ, शरण झुकाओ माँ, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। धन संपद सब कामनावे, माया बंधन छिन मेरी छावे। धन संपद सब कामनावे, माया बंधन छिन मेरी छावे। दो पल काए मिट जाएगा, दो पल काए, दो पल काए मिट जाएगा, छोड़ो इनका साथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठालो। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठालो। सेवक बन कर उनको पाओ, सेवक बन कर, सेवक बन कर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। अच्छा हुआ, जय गुरु। अभी मैं घनश्याम गिरिदा को आमंत्रण करता हूँ आलोचना करने के लिए। जय गुरु, जय गुरु। एक मेरे पास कुछ स्लाइड्स है, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दो स्लाइड्स। लेट मी शेयर, इफ यू लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। Okay. Are you able to see slide, Dada? Yes, 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 yes. Okay. वंदे लोकतिलकं सततवत्त विभूषणम् अमरकत्यश्चरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषम्। प्रणमामि लक्ष्मी मामोर नमस्तुते ब्रह्म मार्ग पदच्युतं प्रेम भक्ति विनायक शांति सुख विधायकम आचार्य प्रवरम नमामि। आज प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादांक निकट कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। दादा ऑडियो ठीक आ रहा है कि मैं इको हो रहा है या फिर ठीक है? ओके ठीक है, क्लियर एंड लाउड। ओके नाउ दादा अभी कम हो गया वॉल्यूम, पहले बेटर था। पहले तो
जितने भी उपस्थित गुरु भाई हैं पुणे की, और जो भी दूसरे राज्य या दूसरी जगह से ये इष्ट आलोचना में शामिल हुए हैं, सभी के लिए मेरा रानंदित जय गुरु। पहले हम सभी बहुत ही भाग्यवान हैं, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट वी आर that we are assembled today at this online platform to sing and to discuss the glory of our loved Lord, none other than Shri Thakur. दादा आपकी स्लाइड्स ओवरराइड हो गए, किसी और ने प्रेजेंट करना चालू कर दिया, आपको वापस शेयर करना पड़ेगा, सॉरी। Okay. दादा प्रेजेंट करिए आपको। या मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ फिर से। Is it coming now? Yes, now it's okay. Then. We are able to see the slide, right? Yeah. Yes, no. No? Yes. Okay. जय गुरु। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सो विल गो स्ट्रेट। आज की जो सब्जेक्ट है, व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्रीय उन्नयन व संगति में सत्संग का अवदान। तो पहले अगर अवदान को समझने के लिए हमको सत्संग को समझना होगा कि ये सत्संग है क्या, और सत्संग से जुड़े रहने से या फिर क्या करने से सत्संग का जो अवदान वी कैन एक्सपीरियंस throughout our individual life, conjugal life, family life, social life and national life. व्यक्तिगत जीवन, परिवार जीवन, समाज जीवन और राष्ट्रीय जीवन में जो उन्नयन है उसको हम समझ सकते हैं। ठाकुर ने बहुत सुंदर के तरीके से सत्संग का डेफिनेशन या सत्संग हमको समझाया है। सत्संग दो वर्ड में है, सत प्लस संग। सत आता है अस धातु से। अस धातु का अर्थात है सत्ता व अस्तित्व व विद्यमानता, और संग आता है सनज धातु से। सनज धातु का मतलब है आसक्ति, अनुराग एंड मिलन। तो ये जो सत्ता है, ये जो अस्तित्व है, विद्यमानता है, इसको जो अनुरागी है, सत्ता अनुरागी होना मतलब किसका सत्ता अनुरागी? मेरा, खुद का और दूसरों का, इसको बोलते हैं सत्ता अनुरागी। तो जो ये सत्ता का सोर्स है, इस सत्ता का जो उच्च है, पहले उनके पास जाना होगा, तब जाके हम सत्ता अनुरागी बन सकते हैं, जीवन को प्यार कर सकते हैं। तो सत्ता अनुरागी व ये सत्ता का जो सोर्स है कौन है, कहां से हम लोग आए? इसीलिए एक वर्ड हम समझते हैं, मैं अगर पुरुष हूं वो है पुरुषोत्तम, जहां से मैं आया हूं। मैं अगर जीवन हूं वो जीवननाथ है। मैं अगर प्राण हूं वो प्राणनाथ है। मैं अगर चिंता हूं वो चिरंतन है। मैं अगर भक्त हूं तो वो भगवान है। मैं अगर दुख हूं तो दुखहारी है। मैं अगर आत्मा हूं तो परात्मा है। मैं अगर प्राण हूं तो प्राणनाथ है। तो वहीं से हम लोग आए। तो हमारा जो गंतव्य है, हमारा जो गोल है, उन्हीं के प्रति होना चाहिए। इसीलिए हम लोग शायद प्रेयर में बोलते हैं, तमेव माता च पिता च तमेव बंधुश्च तमेव सखा तमेव मम देव देव।
मेरा माँ भी आप, मेरा पिता भी आप, मेरा बंधु सखा सहोदर सब कुछ आप, तो मैं कौन हूं? मेरा माँ बाप सब कुछ सखा सहोदर भगवान सब कुछ भगवान है, तो मैं तो भगवान की संतान हूं। तो फिर मेरा गंतव्य, मेरा गोल, माय ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज नथिंग बट टू अटेनमेंट ऑफ द गुडनेस और द गुडनेस। तो मैं तो समझता हूं शायद राम भी भगवान है, श्री कृष्ण भी आए थे, जीसस क्राइस्ट भी आए, रामकृष्ण परमहंस आए थे, भगवान बुद्ध भी आए। तो ये सभी तो परम उच्च हैं। तो मैं जाऊं कहां, किसको पकड़ूं? अगर मैं सत्ता अनुरागी होना चाहता हूं या फिर सत्संग को समझना चाहता हूं? ठाकुर ने खूब सुंदर तरीके से फर्स्ट वाणी में सत्यानुसर में बोले, the degeneration of the humanity began at that moment when the unseen God was infinite and ignoring the seers, worship of their saints began. O mankind, if you desire to invoke your good, forget sectarian conflict. Be attached to your Lord and Master and love them only who attach to the Master. Because all the past prophets are consummated and manifested in the divine man of the present. Shri Thakur, none other than the divine man of the present, who is the embodiment of love, Lord, Jivan, and everything. We can come to know the satsang. Thakur himself is the creator of this huge organization, or the word satsang, or whatever you can say. That's why Thakur says, satsang is the community of lovers of existence. Satsang does not understand the Hinduism, Muslim, and Christianism. Satsang worships the existence of every existentialism because it stands for being and becoming, Jivan and Vardhan. Satsang believes in lifeism, where each living and non-living beings are nurtured, upheld, sustained, and being protected. So finally, Thakur says, satsang is nothing but a man-making institution where each and every individual being transformed to a new, where each and every family, individuality reformed from the within, transformed from the within. That's why in his entire 81 years of life, Thakur has exhibited, propagated the principle of being and becoming. So ये जो being and becoming, जीवन एंड वर्धन, लाइफ एंड ग्रोथ, तो उसी को ही हम सत्संग समझते हैं। क्यों? एक चीज हम सब इसमें क्लियर हो जाएगा, क्यों ठाकुर सत्संग का अर्थ ही बीइंग एंड बिकमिंग हमको समझाए हैं, लाइफ एंड ग्रोथ समझाए हैं, और जीवन और वर्धन ही हम समझते हैं आज। इससे पहले भगवान राम, भगवान कृष्ण आए थे। अब देखिए 4 युग है। राम आए थे त्रेता युग में, त्रेता थे, और उस टाइम बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था भगवान राम और रावण के बीच। ये युद्ध हुआ था 2 प्रोविंस के बीच, 2 राज्य के अंदर। फिर द्वापर में कृष्ण आए, वहां भी युद्ध हुआ। वो युद्ध में एक फैमिली के अंदर युद्ध हुआ, 2 भाइयों के बीच युद्ध हुआ। आज ठाकुर आए हैं हमारे पास हमको बचाने के लिए, हमारा जीवन
को वर्धन करने के लिए और ये जीवन का अस्तित्व रक्षा करने के लिए। ठाकुर इन द सेकेंड मैसेज ऑफ ठाकुर सत्यानुसरण बोलते हैं, यू मस्ट वेज war against the weakness, drive it out, this incarnation of sin, this vampire, blood-sucking vampire. Be brave, be bold. You are the son of Supreme Father. Then only you know that you have the right to enter into the kingdom of heaven. ये दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करो। सर्वप्रथम हमको युद्ध करना होगा ये दुर्बलता के विरुद्ध। हमको साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। स्मरण रखो, तुम शक्ति की तनय हो, तुम परम पिता की संतान हो। तब जाके तुम समझा जाएगा कि ये धर्म राज्य में अधिकार, प्रवेश करने का अधिकार जन्मा है तुम्हारे अंदर। ये ठाकुर क्यों बोल रहे हैं? ठाकुर भी, राम भी आए थे युद्ध किए, कृष्ण भी आए थे युद्ध किए, बट आज ठाकुर आए हैं बोल रहे युद्ध करो अगेंस्ट वीकनेस। ये वीकनेस तो हमारे अंदर ही है। तो ठाकुर जो युद्ध के बारे में बोले हैं, ये युद्ध हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो रावण बैठा है, हमारे अंदर जो कंस बैठा है, उस चरित्र के अंदर युद्ध है। तो हम ही हमारे अंदर युद्ध करना होगा। तो देखिए, राम आए थे, एक युद्ध किए जो दो राज्य के बीच था। कृष्ण आए हैं, एक युद्ध किए जो कि एक फैमिली के अंदर था। तो एक एक लेवल के से डाउन होकर जा रहा है कि अभी ये सिचुएशन हुए थे कि ठाकुर आए हैं हमारे अंदर युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि हमको ये दुर्बलता को हटाना है। हमारे अंदर जो दुर्बलता है उसको हटाना है। तब जाके हम समझ सकते हैं कि ये जो सत्संग, ये जो किंगडम ऑफ हेवन, ये जो बीइंग एंड बिकमिंग, एक जीवन एंड बर्धन की राज्य में प्रवेश करने का अधिकार जन्मा। अगर थोड़ा भी आपके अंदर कपट आता है, दुर्बलता है, then you cannot enjoy, you cannot enter into the satsang, meaning you cannot enjoy bits and pieces of this blissful life of satsang. तो चलिए आगे चलते हैं कि ये जो ठाकुर आए हैं दुर्बलता के विरुद्ध तो बोले, बट ये दुर्बलता का विरुद्ध तो मैं युद्ध किया या फिर कर रहा हूं, फिर क्या? ठाकुर खूब सुंदर तरीके से बोलते हैं, सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं व्यक्ति, परिवार, समाज का उन्नयन के लिए। तो उन्नयन के लिए ठाकुर कहते हैं कि तुम सतगुरु का शरणापन्न हो। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है, पहले सतगुरु की शरणापन्न हो, फिर सतनाम मनन करो, फिर जाके सत्संग की आश्रय ग्रहण करो। फर्स्ट शरणापन्न। शरणापन्न मतलब क्या? सरेंडरनेस। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा। आप कभी शरणार्थी के नाम सुने होंगे। आप शरणार्थी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? मतलब शरणार्थी मतलब हम कंप्लीटली सरेंडर है। वो जो बोलते हैं वही करते हैं, वो जो खाने देते हैं खाएंगे, जो जैसे बोलते हैं वो, जिसके मतलब हम शरणार्थी हैं, वो जैसे बोलेंगे ऐसे करेंगे। तो शरणापन्न भी ऐसा ही है। हम कंप्लीटली ठाकुर की हो। ठाकुर जो चाहते हैं, जो कहते हैं, हमारा कर्म, हमारा वाक्य, हमारा चिंतन, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ माय लाइफ, इट शुड बी प्रस्फुटित होना चाहिए मेरे वाक में, मेरे कैरेक्टर में, मेरे नेचर में, ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ माय लाइफ। एंड ठाकुर जी का तो हमने सतनाम पाया ही है, तो उसको मनन करो। टेक टू द फीट ऑफ ए ट्रू मास्टर। ट्रू मास्टर वही सदगुरु। फिर गुरु का क्वेश्चन आता है कि गुरु कौन है? मैं किसको आज गुरु के हिसाब से ग्रहण करूं? या ठाकुर सही में गुरु है? ठाकुर सही में पुरुषोत्तम है? आज भी कई गुरु भाइयों ने पूछते हैं, डाउट करते हैं कि सचमुच क्या ये युग में ठाकुर
अवतारी हैं जो कि आए हैं जीवन वर्धन सबको बचाने के लिए, सबको रक्षा करने के लिए। तो पहली कुछ 2 स्लाइड्स में हम लोग को पूरा कन्विक्शन के साथ हमको यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि ठाकुर कौन है। ठाकुर एक चीज बोलते हैं, गुरु इज हु एनरिच द पास्ट, एनलाइटन द फ्यूचर एंड एनलिव इन द प्रेजेंट। जो भविष्य को अपूरित करते हैं, सॉरी अतीत को अपूरित करते हैं, भविष्य को आलोकित करते हैं और वर्तमान को संबोधित करते हैं, वो है गुरु, वही है सदगुरु। तो आइए हम देखते हैं 1-2 इंसिडेंट की आलोचना करते हुए कि ठाकुर कैसे वर्तमान को संवर्धित करते हैं, भविष्य को आलोकित करते हैं और अतीत को आपूरित करते हैं। एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा जो कि पुणे से ही जड़ित है। ये 2008-9 की बात है। मैं पुणे में रहता था। उस टाइम पूजनीय बाबाईदा का आशीर्वाद था कि पुणे में जमीन लिया जाए एक मंदिर के लिए। तो हम लोग सभी माइतीदा, सानादा, जितने भी वहां पे गुरु भाई जैसे सजलदा हैं, गोसदा है, सब लोग लगे हुए हैं कि जमीन कहाँ होगा, कैसे जमीन का ढूंढा जा रहा है। तो इस बीच में मेरे को एक मौका आया देवघर जाने के लिए। तो उस टाइम हमने एक जमीन देखा था, एक नेशनल हाईवे के पास, वहां पे एक कॉलेज था। तो पूजनीय बाबाईदा ने उस तरह की उस टाइम इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ऐसे एक जमीन देखना जहाँ के आसपास एक बड़ा मैदान हो, सो दैट उत्सव धूमधाम से हो सके, नेशनल हाईवे के पास हो, जाने आने का कम्युनिकेशन का अच्छा सुविधा हो। तो उस हिसाब से उस जमीन अच्छा था, सही था। तो ऑलमोस्ट हम लोग सब देख लिए थे। तो मैं क्या किया, जाने से पहले एक अच्छे से उसका वीडियो क्लिप बनाया और देवघर के लिए रवाना हुए। वो वीडियो क्लिप ले देवघर पहुंचे, पूजनीय बाबाईदा को निवेदन किया कि दादा ऐसा ऐसा एक जमीन हमने देखे हैं पुणे मंदिर के लिए, अगर आप चाहें तो मैं कुछ वीडियो क्लिप्स लेके आया हूं, तो अगर आप कृपा करें तो देख ले सकते। पूजनीय बाबाईदा मुस्कुराते हुए बोले, আমি তো सब देखते पारी। मतलब he can see everything sitting on the distant around I think 600 or 700 miles away from Pune। तो ये है हमारे गुरु। उसके बाद आने के बाद मैं जब लौट के आता हूं तो इमीडिएट वहीं से ही सानादा को फोन किया था कि सानादा ऐसा ऐसे पूजनीय बाबाईदा बोले। वो भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हुआ। एटलीस्ट whatever we are thinking, whatever we are seeing, मालिक हमारा सब कुछ उनके कानों तक और उनका दृश्य दिव्य दृष्टि के अंदर होता है। आने के बाद शायद 1-2 महीने के अंदर पूजनीय बाबाईदा का फिर से एक आशीर्वाद आता है हम सभी के ऊपर, पुणे गुरु भाइयों के ऊपर, कि पुणे जमीन खरीदने के लिए जो कलेक्शन ड्राइव चल रहा था, उसके लिए हर एक गुरु भाई 1 मंथ का सैलरी देना है। तो जैसे ही ये समाचार मिला, ये सुसंवाद मिला हमको, उस टाइम की बात है जब मेरा एक बेटा 2007 में बर्न था और उस टाइम उसका एक बहुत ही बड़ा जेनेटिक कंडीशन, एक मेडिकल कंडीशन डिटेक्ट हुआ था, जो कि उसकी बॉडी में हेमोग्लोबिन क्रिएट नहीं होता है, मतलब ब्लड क्रिएट नहीं होता है, रेड ब्लड सेल आरबीसी क्रिएट नहीं होता है। तो हमको एवरी मंथ 3 to 4 वीक्स में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता था। तो उस बीच में हमको जो हॉस्पिटल जाते थे हम लोग, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज जो पुणे कैंप रोड में है, कैंप में विमान नगर से वहां तक जाते थे। और मेरे पास उस टाइम गाड़ी, मतलब कार वार नहीं था, तो मैंने कुछ अराउंड
40-45,000 उस टाइम बैंक में सेव करके रखा था कि ये एक कार खरीदेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल जाने आने में काफी तकलीफ होती है, धूप में बारिश में भीग के आते हैं हम लोग बाइक से। तो जैसे ही आया, उस टाइम मेरा सैलरी था अराउंड 50,000। तो जैसे ही पूजनीय बाबाईदा का ये मैसेज देखा तो मेरे पास 40,000 ही था, तो मैंने 40,000 इमीडिएट ट्रांसफर किया। और नेक्स्ट मोमेंट ही जब सैलरी आया तो नेक्स्ट 10,000 ट्रांसफर किया। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा जो इच्छा था एक छोटी कार लेने के लिए, मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेने के लिए जो मदद करेगा, धूप और बारिश से बचेगा मेरा बेटा, ये क्या ठाकुर नहीं समझते हैं? ये क्या ठाकुर मेरा जो इच्छा ऐसे ही अधूरा रह जाएगा? ऐसे ही 1 महीने के अंदर हमारा एक अप्राइजल होता है जो कि मार्च 31 उस हिसाब से होता है। तो उसके अंदर पता चला कि मेरा जो लास्ट ईयर में जो 2 इंक्रीमेंट हुए थे, 2 इंक्रीमेंट के हिसाब से जो फर्स्ट इंक्रीमेंट हुआ था, फर्स्ट इंक्रीमेंट के हिसाब से ही मेरे को सैलरी मिल रहा है, और सेकंड इंक्रीमेंट जो है उसके हिसाब से लास्ट कंप्लीट 1 ईयर से मेरे को सैलरी ही नहीं मिल रहा है। तो कैसे जब हमने टैक्स फाइलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो टोटल सैलरी जब देखा तो कम था, तो उस हिसाब से हमको पता लगा कि ये नहीं मिल रहा है। तो फिर HR से कम ये किया, वो भी कंफर्म हुआ कि नहीं ये सही है, आपको आपका लेटेस्ट जो इंक्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से आपको लास्ट 1 ईयर से सैलरी नहीं मिल रहा है। तो पहले तो इमीडिएट वो सैलरी, वो जितने भी एरियर्स थे इमीडिएट वो बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। करीब 8 दिन भी नहीं हुए थे, 2 साल का जो टैक्स रिफंड होता है, हम लोग नॉर्मली इंडिया में CPA या फिर किसी से वो पकड़ के टैक्स रिफंड का पैसा मिलता है, बट आजकल, उस टाइम मिलता था, वैसे आजकल कैसे मिलता था आई डोंट नो, बट इमीडिएट किसी को कोई पूछा नहीं, कुछ नहीं, कैसे ये डायरेक्ट एक चेक मेरे घर पे आता है, जो लास्ट 2 साल का जो इनकम टैक्स का रिफंड था वो मेरे पास आता है। और अराउंड उस टाइम टोटल मेरे पास कुछ ऐसे 2-2.5 लाख का हो जाता है मनी, तो जबकि मेरे अकाउंट पे 0 पैसा था। और इमीडिएट जाके मैं वो गाड़ी खरीदता हूँ जो कि मेरे बेटे के लिए, मेरे फैमिली के लिए चाहिए था उस टाइम। तो कहने का मतलब ये है, ठाकुर बोले हैं दे दो, अपने लिए कुछ मत चाहो, देखोगे सभी तुम्हारा हो जा रहा है। जब हम सतगुरु की शरणापन्न होते हैं, उनके शरणार्थी बनते हैं, तो मेरा है ही क्या, मैं तो उनकी दिया हुआ हूं, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, मेरे वाइफ सब उनकी है, आई एम जस्ट ए केयर टेकर। तो उनके ऊपर सब कुछ छोड़ना होता है। ये धन, ये घर, ये संपत्ति, सभी कुछ उन्हीं का ही है। वो तो करुणामय है, वो तो दयामय है। हमेशा हमको दया, उनकी दया से, उनकी करुणा से हमको प्लावित करके रखे हुए। ओनली थिंग इज वी नीड टू टेक ए स्टेप फॉरवर्ड टू रियलाइज दैट, टू अंडरस्टैंड दैट। तो आइए, ये है सत्संग। और सत्संग की अवदान, ये तो व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन या फिर नेशनल लाइफ, सोशल लाइफ में क्या अवदान है। मैं सत्संग की अवदान तो नहीं कहूंगा, बट ये सत्संग की ब्लेसिंग्स। सत्संग बोलते ही मैं ठाकुर को समझता हूँ, पूज्यपाद बड़दा को समझता हूँ, श्री श्री दादा को समझता हूँ, श्री श्री पूजनीय बाबाईदा को याद आता है। जैसे मैंने पहले कह रखा हूं कि मेरे बेटे का मेडिकल कंडीशन था जिसकी बॉडी में रेड ब्लड सेल जनरेट नहीं होता था, हर महीने हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मेरे को नहीं पता था कि कब कैसे ये ठीक हो सकता है, और कभी मैंने सोचा भी नहीं, कभी ठाकुर को मांगा भी नहीं, ठाकुर मेरे साथ क्यों ऐसा, और कब ठीक कर दोगे इसको, कभी नहीं। मैंने हमेशा प्रार्थना किया है, ठाकुर मेरे को छोटी छोटी दुख ही देना हमेशा, ताकि मेरा मन, मेरा चित्त
आपकी चरणों में हमेशा पड़ा रहे, हमेशा लगा रहे। कभी भी इतने बड़े बहुत फ्रेंड्स, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल सब दुख करते थे कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, बट कभी मेरे जीवन में, मेरे मन में कभी नहीं आया कि क्यों ऐसा। बट हमेशा जब ठाकुर थे तो मेरे को लगता था कि एक पिलर है, कभी ना कभी डेफिनेटली आई विल क्रॉस ओवर दिस सिचुएशन, दिस डेंजर विल बी क्रॉस्ड ओवर। तो ऐसे एक समय आया जो कि 2011 था, 2010 था, ऐसे ही एक सत्संग की, और एक एडवोकेट थे जिसका जमीन शायद हमको खरीदना था पुणे से, सब मिलके उस टाइम अमिताभ दा और साना दा, बहुत सारे गुरु भाई, विशु भाई, इन लोग शायद 10-15 गुरु भाई सब मिलके हम लोग गए थे देवघर। उसके बाद पूजनीय बाबा का ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हुआ कि मेरे को यूएस जाने का। उससे पहले मैं जनसार में काम करता था, जनसार से 25-26 बार मेरे को बोला गया था कि तुम यूएस जाओ। मैं कभी, मैं घर से भी, मेरे घर से भी वाइफ और फैमिली को इच्छा नहीं था कि मैं जाऊं, बट इस बार पूजनीय बाबा का ब्लेसिंग्स था तो मैं मना नहीं कर पाया, मैं यूएस आ गया पूजनीय बाबा की ब्लेसिंग्स लेके। अब देखिए, गौर कीजिए ठाकुर ब्लेसिंग्स क्या होता है। पूजनीय बाबा जो हमने मास्टर करके ग्रहण किए हैं, पूज्यपाद दादा को जो आचार्य संघ हमको लाभ हुआ है, उसका क्या महत्व है। 2011 में आए और फैमिली पुणे में छोड़ के आया, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं था मेरे को कि बेटे का इलाज या फिर बेटे का जो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट है उसको कैसे किया जाए। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई, यहाँ पे इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस ये कवर करता नहीं कवर करता, क्या था कुछ भी पता नहीं था। आके ग्राउंड वर्क करना था, तो वो रिसर्च मैंने किया। करने के बाद लकीली कुछ भी पता नहीं चला उस टाइम, जब तक वो फैमिली नहीं आए, जब तक हॉस्पिटल नहीं गए, तब तक कुछ पता नहीं था। बट एनीवे, मैंने फैमिली को बोला कि आप आ जाओ, अगर हम देखेंगे, अगर 1-2 महीना रुकेंगे, अगर ठीक ठाक होता है, इफ एवरीथिंग गोस वेल विल स्टे हियर, अदरवाइज विल गो बैक। इस बीच में 2012 मेरा एक प्रोजेक्ट खत्म होता है। हम लोग आईटी में काम करते हैं तो आईटी में प्रोजेक्ट वाइज काम होता है। जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो हम लोग का एक ये रहता है कि 2 वीक हम बेंच पीरियड में रहते हैं। अगर 2 वीक के बाद हमको नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो और 2 वीक मिलता है, जो कि ग्रेस पीरियड बोलते हैं। अगर वो ग्रेस पीरियड में भी हमको नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो फिर हमको वी सपोज टू गो बैक टू द आवर प्रीवियस जॉब लोकेशन, जैसे जो कि इंडिया है, जो कि पुणे है। तो उस टाइम 6 वीक बीत गया था, तो मैं अचानक एक दिन सपने में देख रहा हूं पूज्यपाद आचार्य देव दादा और ठाकुर बंगलो से नाटमंडप, मतलब जो बड़दा घर, उस तरफ जा रहे हैं और मैं 200-300 मीटर दूर में हूं और उनको मैं पीछे से प्रणाम कर रहा हूं। जब पीछे से प्रणाम करके मैं उठता हूं, ये सपने में जब उठता हूं तो देखता हूं कि पूज्यपाद दादा पीछे आके मेरे सामने ही खड़े। मैं जब सर उठा के देख रहा हूं, पूज्यपाद दादा मेरे ऊपर मुस्कुरा के देख रहे हैं मेरे ऊपर, और कुछ बोले नहीं। फिर 2-3 मिनट रुके और चले गए। मैं भी प्रणाम किया। फिर नेक्स्ट सुबह ऑफिस जाने से पहले ही ऑफिस से मेरे को कॉल आता है कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ये लोग से आदमी से मिलो और ये डायरेक्टर है, ये वैसा वैसा ऐसा। तो नॉर्मली एक नए प्रोजेक्ट के ट्रांजिशन होने के टाइम हमको इंटरव्यू ये सब की जरूरत पड़ता है, बट पूज्यपाद दादा की आशीर्वाद से शायद हमको वो सब भी नहीं करना पड़ा, बट उसी प्रोजेक्ट में हम लगे रहे। फिर 2014 में पूज्यपाद दादा की आशीर्वाद होता है यूएस के ऊपर कि आई वांट ठाकुर's परमानेंट एड्रेस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पूज्यपाद दादा बाबाइदा का इच्छा। तो हम लोग सभी लगे पड़े। इवन पुणे में जो अभी अतरी माँ है, अतरी माँ भी जानती है, उस टाइम हम लोग को वेबसाइट की काम शुरू हुआ।
काफी हम लोग मेहनत करते थे दिन रात। और यहाँ पे तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इतना है, सब कुछ फोन में ही होता था। तो हम लोग घंटों फोन में बातें करते, घंटों जाजन करते, घंटों कलेक्शन के लिए करते, वैसे वैसे बीत जाता है। फिर वही 2014 के बीच जो मेरे बेटे यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उस टाइम उसका जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो डॉक्टर ने एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का मैच डोनर ढूंढ के निकाला और बोले कि वी कैन डू इट स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो जाके पूज्यपा दादा को जब हमने निवेदन किया, पूज्यपा दादा का ब्लेसिंग्स था कि अनरिलेटेड नहीं करना, दूसरे से नहीं करना, अपने ही अगर भाई बहन सिबलिंग्स हो तो उसी से ही करना। तो अभी कहां से आए सिबलिंग, कैसे करें सिबलिंग? तो इसी में एक डॉक्टर फिर ऑप्शन देते हैं कि आईवीएफ के थ्रू हो सकता है। तो फिर 2015 में फिर से देवघर जाने की यूएस से सभी गुरु भाई, एकदम 15-20 गुरु भाई यहाँ से हम गए थे। तो उस टाइम फिर पूजनीय बाबाईदा का ब्लेसिंग्स मिलता है। इससे पहले मैं एक ग्राउंड वर्क करके गया था कि जब ये आईवीएफ कंप्लीटली इंश्योरेंस में कवर नहीं होता था, जो कि एक साइकिल तो मैक्सिमम 3 साइकिल्स हो सकते हैं। एक आईवीएफ साइकिल का कॉस्ट है $30,000 to $40,000 एंड उसमें एक टेस्ट रहता है, एम्ब्रियो टेस्ट, जो कि ईच साइकिल में अराउंड 12 to 13 एम्ब्रियोस आते हैं और ईच एम्ब्रियो को टेस्ट करने के लिए $5,000 की कॉस्ट पड़ता है। ये सब कुछ भी कवर नहीं था, क्योंकि ये सब निवेदन करने से पहले मैं रिसर्च, एक ग्राउंड वर्क करके गया था। जब हमने 2015 में पूजनीय बाबाईदा को ये निवेदन किया, पूजनीय बाबाईदा बोले कि जाओ, यू डू ओनली 3 साइकिल्स। तो इतने कॉस्ट क्या मैं अपने सैलरी से, अपनी हाथ से, अपनी पॉकेट से दे पाता? मुश्किल, इम्पॉसिबल था। जो कि सालाना हमारा सैलरी हुआ करता था $80,000 to $90,000, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग इंडिया कंपनी से ट्रांसफर होकर आए हुए थे। तो इस बीच में इतना खर्चा करना मुश्किल था। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो कि कंप्लीटली कवर्ड नहीं था, जैसे ही पूजनीय बाबाईदा का ब्लेसिंग्स लेके यूएस में लैंड होते हैं, 15 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को कॉल आता है कि आज टुडे योर एंटायर IVF cost and all the test has been covered by the insurance। एंड उसी दिन से एक भी जो प्रोसीजर होता है, सभी प्रोसीजर कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। तो उस हिसाब से मैं, शायद ज्यादा टाइम हो रहा है तो मैं ज्यादा नहीं लूंगा टाइम, थोड़ी संक्षिप्त करके ये पूजनीय बाबाईदा, पूज्यपा दादा का जो ब्लेसिंग्स है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो है ऐसे आईवीएफ हुआ और हमने कंसीव किए। इस बीच में एक दिन मेरी वाइफ सपने में देख रही है कि पूज्यपाद बाबाईदा, पूजनीय बाबाईदा हमारे घर पे आए हुए हैं, जो हम की लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। और ये देख के ही ऐसे ही, उस तो प्रेगनेंसी का पीरियड है, तो बहुत ही नर्वस है, उस दिन बहुत ही गर्म है, तो उसकी फेस में बहुत पसीना पसीना है। तो पूजनीय बाबाईदा जो ध्यान की चादर ओढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपना चादर खोल के माँ को बोलते हैं कि इसमें मुंह पोंछ लो। तो उसमें से उनका सपना टूट जाता है। फिर नेक्स्ट डे आज यूजुअल मैं ऑफिस गया, माँ घर में है, बच्चा स्कूल में गया हुआ है। उस दिन और समर का टाइम था, अराउंड मई जून में काफी यहाँ पे भी गर्म होता है।
जो कि 100 101 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो उस दिन काफी गर्म हुई थी हो रहा था और वाइफ लेटी हुई है सोफा में। तो अचानक उसको इतना गर्म हुआ कि उसको और ब्रीदिंग की डिफिकल्टीज होने लगी प्रेगनेंसी के पीरियड। और ये ब्रीदिंग की जो डिफिकल्टीज उस टाइम मेरे को कॉल कर रही है और मैं ऑफिस में हूँ। मैं कहीं लंच के बाद नॉर्मली हम लोग फ्रेंड दोस्तों के साथ थोड़ा वॉक करते हैं, तो वो वॉक में मैं मतलब रियलाइज नहीं कर पाया कि फोन आ रहा है। तो जब मैं आधा घंटे के बाद देखा फोन काफी मिस कॉल है, तो इमीडिएट मैं दौड़ के आया घर। तो उस टाइम वो इतना सेंसलेस टाइप ऑफ हो चुकी है कि जो कि एसी ऑन करने की भी उसकी ताकत नहीं, इतनी गर्म में। तो मैं जैसे आया उसका हालत देख के इमीडिएट हमको 911 कॉल करना पड़ा और वो ब्रेथलेसनेस हो रही है। जाके सब कुछ एसी वसी ऑन किया, 911 कॉल करने के बाद सब पैरामेडिक स्टाफ आए, एम्बुलेंस आया, सब कुछ आए, सब कुछ चेक किया। बट जो कि पूज्यपाद बाबायदा का तो आशीर्वाद था, वो तो आए थे, क्योंकि वो अपना जो ध्यान चादर की तो एक पल्लू उन्होंने दिए थे उस माँ को फेस वाइप करने के लिए। तो यही था उनकी आशीर्वाद। तो आशीर्वाद के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। वो टेस्ट करके सब कुछ टेस्ट नॉर्मल था, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में जो ब्रेथलेसनेस होना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो ऐसा ही ठाकुर पूजनीय बाबायदा की आशीर्वाद से ठीक हुआ। और एक चीज है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट बेटा उसका तो मेडिकल कंडीशन था, तो इसीलिए हम लोग जो सेकंड बेबी हम लोग कंसीव किए थे उसका एक टेस्ट होता है सीवीएस टेस्ट, कि उसका जानने के लिए कि उसका जेनेटिक्स कहीं फर्स्ट बेबी से मैच तो नहीं कर रहा है, या फिर उसके जैसे तो मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। उसके एक टेस्ट होता है जो कि सीवीएस टेस्ट बोला जाता है। एंड दैट कुड बी रिस्की इफ लिटिल बिट गोइंग रॉन्ग, बिकॉज द पियर्स इन नीडल इनसाइड द प्लासेंटा, गर्भ के अंदर से एक लिक्विड निकालता है, वो लिक्विड से टेस्ट होता है। तो ये जब डॉक्टर ने हमको बताया तो I was not ready to test for that test, because it can hamper the pregnancy. It can bring a risk to both of the life. तो anyway यहाँ के तो मेडिकल बहुत ही एडवांस्ड है, बट स्टिल आई सेड गिव मी 5 minutes, एंड देन मैं थोड़ा नाम किया तो मेरे को कहीं इनर से एक नाक आया कि नो यू डी नॉट हैव टू डू इट। तो मैं ठाकुर जी को भरोसा किया और ठाकुर जी के प्रार्थना करके बोला नहीं, हमको नहीं करना है। एंड देन दे टुक आवर अंडरटेकिंग्स, राइटिंग सिग्नेचर दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव दिस टेस्ट, सो वी आर रिस्पांसिबल फॉर एनीथिंग इफ इट हैपेंस। तो ये करके हम लोग मूव ऑन किए। फिर और एक बार भी सपने में पूज्यपाद दादा पूज्यपाद बाबायदा हम लोग के घर में आए हैं। जब मैंने ये बात पूजनीय बाबायदा को निवेदन किया तो पूजनीय बाबायदा भी जाके पूज्यपाद दादा को निवेदन किए और हमने एक स्पेसिफिक एक भोजन का एक प्रणामी हमने अरेंज किया था। खूब सुंदर तरीके से पूजनीय बाबायदा बाबा के पास निवेदन करवाए कि ऐसे ऐसे किया जाता करके, तो जो गुरु भाई थे उन्होंने कर दिया। तो उसके बाद एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट हमारे लाइफ में होता है। अराउंड 23 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में अचानक जो सोनोग्राफी होता है, जो वहां से पता चलता है कि बेटी की, जो बच्ची की किडनी एक नहीं है और एक में सिस्ट है। 2 किडनी होने चाहिए, एक ही किडनी है। तो बोले ओके। देन नेक्स्ट टाइम जब हमको टेस्टिंग के लिए, फिर से टेस्ट करने के लिए, जो स्कैनिंग करने के लिए बुलाया जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी और टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी बिकॉज इट हैज ओनली 1 किडनी एंड दैट किडनी आल्सो हैज ए सिस्ट। ये हो सकता है चांसेस कि दैट किडनी आल्सो इट्स नॉट गोइंग टू सर्वाइव, मतलब ये किडनी बचेगा नहीं, वो किडनी अपने आप, वो सिस्ट ही किडनी को नष्ट कर देगा।
बट हमने बोले नहीं, ठाकुर है हमारे पास, जो पूजनीय बाबाईदा हमको ब्लेस किए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं होगा, तो लेट्स गो फॉर इट। तो इसके बाद और एक इंसिडेंट होता है हमारे लाइफ में। एक सपने में पूजनीय बाबाईदा मेरे वाइफ की सपने में आती है। पूजनीय बाबाईदा आते हैं और माँ देख रही है कि उनकी झोली में, उनकी गोद में एक सद्यजात बेबी, जो कि सद्यजात मतलब जैसे इमीडिएट बॉर्न होने के बाद जो बॉडी में, बच्चे की बॉडी में ब्लड लगा हुआ रहता है, सलाइवा लगा रहता है, बहुत कुछ लगा रहता है, तो उस ऐसे ही एक हाथ में पूजनीय बाबाईदा मेरे वाइफ की गोदी में दे रहे। तो वो देख के हमको पता लगा कि नहीं, पूजनीय बाबाईदा, पूज्यपाद दादा सबका आशीर्वाद है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बात आज भी याद है, जैसे मैंने बोला था कि हमने पूजनीय बाबाईदा, पूज्यपाद दादा एक परमानेंट एड्रेस ऑफ ठाकुर के लिए हमको ब्लेस किए थे। उस दिन से काम चालू था। तो नॉर्मली मेरा जो 8 आवर्स का ऑफिस था, शायद मैं 2 घंटे काम करता ऑफिस का, और बाकी 6 घंटे यही बच्चे, फैमिली एंड ठाकुर, उनके टाइम पे ही मेरा कंप्लीट टाइम जाता। नवंबर 2016, नवंबर 15, 2016 में हमने कंप्लीटली एक न्यूयॉर्क की शहर में, यूएस का, ठाकुर जी के लिए फर्स्ट टाइम एक बिल्डिंग खरीद लिया, जो कि सत्संग सेंटर का। तो ये बात जब हमने पूजनीय बाबाईदा को सभी ने निवेदन किए, तो पूज्यपाद दादा बहुत खुश हुए। बोले उस टाइम था दिवाली, जो कि लक्ष्मी पूजन की एक दिन पहले। तो पूज्यपाद दादा बोलते खूबी भालो न्यूज खबर दिए छो, लक्ष्मी पूजन एक दिन आगे। और ये खुशी में हमारा और एक खुशी दुगना करता है, जो कि नेक्स्ट डे नवंबर 16 ऑफ 2016, 15 अक्टूबर, उस दिन लक्ष्मी पूजन था। तो उसी दिन मेरे बेटी का प्री टर्म, जो कि 7 मंथ में जन्म होता है। और दया करके पूजनीय बिंकीदा उसकी नामकरण करते हैं। और देखा गया, जब इमीडिएटली डॉक्टर लेके देखते हैं, बच्चे को टेस्ट करते हैं, जो किडनी नहीं था, जो 23 वीक्स में जो डिटेक्ट हुआ था, किडनी में सिस्ट था, जो कि डॉक्टर हमको एडवाइस कर रहे थे कि टर्मिनेट करो, बट वी डिड wrote or signed on undertaking, taking the risk, only looking at the Thakur, looking at Pujaniya Babaida, Pujyapad Dada. You won't believe, when doctor tested immediate after the burn, after 15-20 minutes, after half an hour, they came and they gave us a news that the baby is completely fine, and both the baby is having both kidneys, and both the kidneys does not have any cyst, कुछ भी वहां पे सिस्ट नहीं है, दोनों किडनी पूरा के पूरा नॉर्मल की तरह ही फंक्शन कर रहे हैं। तो ये एक कोइंसिडेंस कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ पूज्यपाद दादा, पूजनीय बाबाईदा की गाइडेंस और ठाकुर की आशीर्वाद, यहीं से ही होता है। तो इससे पहले भी, इसके बाद भी, और काफी सारे चीजें ऐसे जो आए, जो कि हमारे जीवन इतना सुखमय और प्रशस्त कर दिए, मैं बता नहीं सकता। फिर अभी बच्चा तो हो गया, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, 7 मंथ प्री टर्म हुआ था। देखा गया कि वो बच्ची सी यूज्ड टू फॉरगेट ब्रीदिंग, क्योंकि वो प्री टर्म कंप्लीट टर्म नहीं हुआ था। तो उसको फिर हॉस्पिटल में रखना पड़ा ऑक्सीजन देके, क्योंकि वो भूल जाती थी, उसका रेस्पिरेशन सिस्टम, उसको कंटिन्यूअस सांस लेने के लिए वो भूल जाती थी।
फिर देखा गया कि उसका HB डाउन जाता है, हेमोग्लोबिन, उसका भी ब्लड की कमी हो रहा है। तो फिर से ये क्यों, ये क्या सही, ये उसका जो भाई है, उस जो मेरे पहले बच्चा है, उसके जैसे भी क्या उसको ब्लड देना पड़ेगा, उसकी जैसे ही क्या ये बॉडी में उसका ब्लड नहीं बनेगा, ये सब चिंता। बट मेरे वाइफ एक दिन बोली कि ये कैसा है, तो मैंने बोला देखो, अगर ठाकुर जी का इच्छा यही सही है तो फिर हम पहले एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाते थे, एक बच्चे को एवरी 3 to 4 वीक्स में ब्लड देते थे। अभी सही ठाकुर का अगर इच्छा है तो 2 को ही सही, 2 को लेके जाएंगे, 2 को ब्लड दिलाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे बच्चे नहीं है, वो तो ठाकुर की ही बच्चे हैं। वी आर जस्ट ए केयर टेकर। तो यही सोचते सोचते उस टाइम ये टेस्ट भी नहीं हो सकता कि, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी, कि जो कि कंफर्म करे टेस्ट कि ये मेरे पहले बच्चे जैसे नहीं है, वो हेल्थी है, या फिर उसके जैसे ही उसका भी जेनेटिकल मेडिकल कंडीशन है जिसको एवरी मंथ ब्लड देना पड़ेगा। फिर 2 मंथ हॉस्पिटल में रुकने के बाद everything gets confirmed that baby is healthy, she doesn't have that kind of genetic or medical condition as my son, मेरे बच्चे की तरह, पहले बच्चे की तरह उसका मेडिकल कंडीशन और नहीं है, उसका ब्लड सब कुछ पूरा के पूरा नॉर्मल है, कंप्लीटली हेल्दी बेबी। अभी नेक्स्ट फेज शुरू होता है कि ये जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, मेरे बच्चा का जो ट्रीटमेंट, क्योंकि पूजनीय तो बाबायदा ये आशीर्वाद करके दिए हुए हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। वही दितेंदु जो मेरे बच्चे की नाम, बड़े बच्चा, उसका जिंदगी लेके वो आई, तो हमको फिर 2 years वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर बोले कि 2 years नहीं होते हुए उसका स्टेम सेल हम लोग निकाल नहीं सकते। तो 2 साल हमने वेट किया, उसका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का दिन आया। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त करके बता रहा हूं, जो कि दोनों बच्चे 2 तरफ सर्जरी के लिए जाते हैं अंडर द नाइफ। फिर ठाकुर जी की दया है, दोनों सही सलामत आते हैं। और ऐसा एक ट्रांसप्लांट की टाइम, ऐसा एक सिचुएशन आता है जबकि मेरे बच्चे का ब्रीदिंग में काफी दिक्कत होती है, वो ब्रीद नहीं कर पाता। तो इमीडिएट हमने टेक्स्ट किया देवघर को मैसेज में। मैं नहीं चाह रहा था कि कभी मेरे लाइफ में ना ठाकुर को कुछ मांगा है, ना पूज्यपाद दादा को कुछ मांगा है, ना पूजनीय बाबायदा को कुछ मांगा है। बस खाली यही प्रार्थना किया है, ठाकुर क्योंकि आपकी इच्छा ही मंगल है, मैं नहीं जानता हूं कि मेरे किसमें मंगल होगा, आपकी इच्छा ही मेरे अंदर भर दो और हम सभी के अंदर आपकी इच्छा ही भर दो, क्योंकि आपकी इच्छा ही मंगलमय है। इमीडिएटली पूजनीय बाबायदा बोले, उनको बोल दो कुछ भी नहीं होगा। उस टाइम पूजनीय बाबायदा खाना खा रही थी, पूजनीय बाबायदा का जो बौरानी है, बौरानी खाना खिला रही थी। तो बौरानी की थ्रू ही वो मैसेज दिया गया पूजनीय बाबायदा को। तो पूजनीय बाबायदा खाते खाते ही बोले कि नहीं, कुछ नहीं होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, विदाउट कंप्लीटिंग 24 आवर्स वो बच्चा आईसीयू से बाहर आ जाता है, जो कि ब्रेथलेस के लिए उनको आईसीयू में डाला गया था। तो इस तरह हमारे जिंदगी में काफी सारे, बहुत सारे घटनाएं हैं जो कि मैं जब देखता हूं 2008 से लेकर 2020 तक ठाकुर ने एक एक ईंट के ईंट ऊपर जैसे जोड़ के घर बनाते हैं। एक बंदोबस्त किया जाता है कि ये विंडो यहाँ पे रखना है, यहाँ पे किचन का सिंक बनाना है, यहाँ पे किचन करना है, यहाँ पे डोर करना है। तो इसी तरह एक एक चीज सब सजा के मेरे लाइफ में रखे हैं ठाकुर। आज जब मैं देखता हूं, लुक बैक माई 12 years of journey, then I understood what ठाकुर, what आचार्य परंपरा, what is पूजनीय बाबायदा,
what Pujyapada Acharya did. We are extremely lucky that हमको ये जिंदगी में हमने ऐसे गुरु, ऐसे पुरुषोत्तम पाए। देखिए ये जो कैसे ठाकुर का मैसेज है, तुम ठीक ठीक समझो कि तुम अपने अपने परिवार के 10 और देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। Now for this certain you are responsible for the present and future of yourself, your family, your environment and your country. तो हम जैसे करेंगे वैसा ही हमारा परिवार, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा कंट्री भी ऐसा ही हो जाएगा। ठाकुर इसलिए बोलते हैं कि जित देश आता है कमांड से। तो अगर हम एक आदेश, एक कमांड को लेके चलते हैं तो हमारा जीवन डेफिनेटली सुखकर, सुखमय और निरामय, निरोग होगा ही होगा। ये इससे बेहतर मैं शायद ही आपको बता सकूं, बट एक चीज पहले जाने से पहले ठाकुर ने बोले हैं, आपकी जिंदगी में जो भी आए, जिंदगी हो तो दुख तो आएंगे, कष्ट तो आएंगे, बट हमेशा तैयार रखो, तैयार रखो। वन डे द डेंजर विल बी क्रॉस्ड ओवर। हैव पेशेंस, धैर्य रखो, विपद कट जाएगा। तो इसीलिए बी अटैच्ड टू द ट्रू मास्टर देन बीइंग shattered by the consideration of good and evil. You shall safely achieve success. ठाकुर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है, सबको पता है। Do never die nor curse death, but resist death to death. मारना बट मृत्यु को अवलुप्त करो। इसका मतलब क्या है? भगवान राम आए थे तो बोले तो एक दिन जन्म हुआ है तो मरण तो होगा ही। कृष्ण भी यही बताया, सभी ने यही बताया, बट ठाकुर क्या यूनिक चीज बोले? डू नेवर डाई नॉर कर्स बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। मैं ये समझता हूं मरण तो हमारा शरीर का होता है, बट आत्मा का नहीं। हम लोग जब भी इष्ट, सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट पुश ऑफ आवर ड्यूटी इज द फॉर द इष्टवृत्ति, बट इष्टवृत्ति से पहले हम लोग एक ऑटो सजेशन करते हैं, मैं अजर, मैं अमर, मुझे ग्रहण करो, प्रणाम लो। मैं अजर, मैं अमर, उसका मतलब मैं अजर, मैं जन्मूंगा नहीं, मैं अमर, मैं मरूंगा नहीं। मतलब मैं मरूंगा नहीं, मतलब ठाकुर इस टाइम आए हैं, हमने शायद कितने जन्म लिया होगा और आगे भी कितने जन्म हो सकता है, बट दिस बर्थ इज एनफ टू कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द फुट ऑफ आवर लव लॉर्ड। इसीलिए जो ठाकुर पहले बोले थे, जो मैं पहले फर्स्ट डिस्कस कर रहा था, वी हैव टू वेज वार विद अगेंस्ट द वीकनेस। हम लोग के दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ठाकुर जी का जो पंच नीति है, जजन जाजन इष्टवृत्ति और सस्तैन सदाचार, ये करने के बाद यथेष्ट है हम लोग को ठाकुर के पास कंप्लीटली सबमर्ज होने का, सो दैट वी विल नेवर गेट अनदर बर्थ। क्योंकि मैं आत्मा हूं और परमात्मा है, वहीं पे हमारा कंप्लीटली सबमर्ज, सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर आत्मा होता तो फिर से जन्म होगा, बट जब हम ठाकुर के चरणों में मिल जाते हैं तब जन्म का और दूसरी जन्म का कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए ठाकुर बोले हैं, डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। तो आइए सब मिलके यही जो ठाकुर की पंच नीति है, दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करके हमारे अंदर इतना साहस बन जाए, इतना शक्ति हो जाए, सो दैट वी कैन डॉट टू डॉट ये जजन जाजन इष्टवृत्ति सस्तैन सदाचार पालन कर सके और हमारा जिंदगी को सहानु, सुखमय, निरोग
निरामय और कंप्लीट निर्वाण के तरफ ले जाएं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंस्पायरिंग स्पीच। एंड अपने कैसा आपका जीवन में क्या क्या हुआ, ये देख के हमको लगता है ठाकुर जी बोलने से क्या होता है। इट्स रियली नाइस टू हियर यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है दादा कि आप सभी, पुणे तो मेरा होम ही है, तो आप सबके मिल मतलब बात करके ठाकुर की जो ग्लोरी है वो सब शेयर करके काफी आनंद लगा। बट सॉरी फॉर टाइमिंग, टाइम का थोड़ा ये नहीं चला, बट स्टिल आई ट्राई टू मिनिमाइज दैट, बट somehow it took little longer. ओके दादा, जय गुरु। जय गुरु। मनोज भाई। जी दादा। कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और ध्वनि देंगे। जी दादा, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो हाँ। हाँ ठीक है, तब हम ध्वनि दे देंगे, ध्वनि देके समाप्त करेंगे। ठीक है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चंद्र जी की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की, आचार्य पूज्यपा श्री श्री वरदा की, आचार्य पूज्यपा श्री श्री दादा की, सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्यपुत्रम, वंदे मातृवर्गम, वंदे कृष्णदेवतम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय जय सभी को जय गुरु। जय गुरु मनोज भाई। जय गुरु, जय गुरु भाई। जय गुरु, जय गुरु।